filtration is filtration on a molecule. It's filtration on a molecular level. So what exactly it is, it first start by filtering small molecules out of the glomerulus and then into the Bowman's capsule due to the hydrostatic pressure that builds up. Good. So what exactly happens in ultrafiltration is that the hydrostatic pressure builds, and then due to that hydrostatic pressure, there's like more increased hydrostatic pressure in the glomerulus, which is more than the Bowman's cap. So then Hmm. the water from the blood then goes down the water potential gradient through the endothelium of the capillary walls, then through the basement membrane, and then the podocytes. They then filter these substances. So exactly what the endothelium is that it is one cell thick with many perforations in it. With the basement membrane being the second level of filtration, it filters out WBCs, RBCs, and relatively large MR molecules. And then the last step is the podocyte, in which it is made. It is one of the cell that makes up the lining of the Bowman's capsule. Yeah, that's it. एग्जैक्टली छागे कूल हो गया। तो हम डायरेक्टली दोबारा अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से स्टार्ट होते हैं एंड वी आर गोइंग टू डू इट वेरी वेरी स्लोली। ठीक है, बेशक आज सिर्फ ये कवर हो जाए, आगे वाला 3 क्लासेस में और मैं चैप्टर खत्म करवा दूँ। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के अंदर होती है 3 हिस्सों के अंदर। वन ऑफ देम इज नोन एज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, द अदर इज नोन एज लूप ऑफ हेनले, और फिर आपके पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है। ये आपके पास 3 हिस्सों में आपके पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में क्या रीअब्जॉर्ब होगा, पीसीटी में क्या होगा, लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, उन सबको हम एक एक दफा देखेंगे। बिकॉज वी नो दैट मैनी ऑफ द सब्सटेंसेज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नीड टू बी केप्ट इन द बॉडी, so they have to be reabsorbed into the blood as well as the fluid passes along the nephron. As only certain substances are reabsorbed, the process is called selective reabsorption. तो सबसे पहला पार्ट क्या आता है, द रीअब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। आपके पास अगर नेफ्रॉन की आपके पास डायग्राम है, सो this is the part which we are going to discuss now, which is known as the proximal convoluted tube. मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन जो आपके पास है वो यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर हो जाती है, और ये प्रॉक्सिमेट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पीसीटी सेल से बनी होगी। It is made of a single layer of cuboidal epithelial cells, and these cells are adapted for their function of reabsorption by having many microvilli on the surface facing the lumen of the nephron to increase the surface area for reabsorption of substances from the filtrate in the lumen. Many co-transporter proteins in the lumen membrane are also present. Lumen मतलब कि उसके खाली अंदर जो जगह है। देन मोर इम्पोर्टेंटली इसके बहुत टाइट जंक्शंस होते हैं, इसलिए भी बहुत अडॉप्टेड है कि फास्टर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। प्लस इसके अंदर बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजिंग दी सोडियम पोटेशियम पंप्स में आगे बहुत मदद करें। अब याद रखें कि ब्लड कैपिलरीज आर वेरी क्लोज टू द आउटर सरफेस ऑफ द ट्यूब्यूल। अगर मैं यहाँ पे दोबारा ट्यूब्यूल बनाऊं आपके पास, तो इसके इर्द गिर्द, दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, तो इसके इर्द गिर्द क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज बहुत सारी है। ठीक है, एंड दे आर वेरी मच क्लोज टू द आउटर सरफेस ऑफ द ट्यूब्यूल। The blood in these capillaries has come directly from the glomerulus, so it has much less plasma in it than usual and has lost much of its water and mainly of the ions and other small solutes. The basal membrane of the cell lining the proximal convoluted tube are those nearest the blood capillaries. Sodium potassium pumps in these membranes move the sodium ions out of the cell. अब होता क्या है कि आपके पास ब्लड कैपिलरीज जैसे एल्विलाई होता है, पीसीटी की इर्द गिर्द बहुत क्लोज फ्लो कर रही है, एंड द ब्लड इन दीज कैपिलरीज डायरेक्टली ग्लोमेरुलर से आई, जहां पे जंक्शन सारे ज्वाइन होती थी, आर्टेरियोल्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो उसके अंदर बहुत कम प्लाज्मा होता है क्योंकि बहुत सारा वाटर वो ऑलरेडी लॉस्ट करके आ रहा है। अब जो बेसल मेम्ब्रेन्स होती हैं ऑफ द सेल्स दैट आर लाइनिंग द पीसीटी, जो पीसीटी सेल्स हैं वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब की ही बात हो रही है, उसी की ये सारे सेल्स होते हैं। दे आर लाइंड विद द बेसल मेम्ब्रेन्स। इनकी जो मेम्ब्रेन्स का नाम बेसल मेम्ब्रेन्स होता है, विच आर ऑब्वियसली द नियरेस्ट टू द ब्लड कैपिलरीज। अगर आपके पास ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है ना, इसके इर्द गिर्द आपके पास क्या लगी है, ब्लड कैपिलरीज। बेसल मेम्ब्रेन ये है जो इसकी कवरिंग है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब की। गॉट इट? इज इट क्लियर? सो सबसे पहले Yes, sir. सोडियम पोटेशियम पंप्स भी इन मेम्ब्रेन्स के अंदर होते हैं जो कि सोडियम आयंस को बाहर भेजेंगे, सेल से बाहर। दे आर कैरिड अवे इन द ब्लड। ब्लड का मतलब क्या है, यहाँ पे कैपिलरीज ही है। ठीक है, कुछ टर्म्स मिक्स नहीं करनी, कैपिलरीज ही हैं वो फ्लो कर रही हैं जिनमें ब्लड है। तो अगर मैं कहूँ इनटू द ब्लड, इट मींस इनटू द कैपिलरीज व्हिच आर सराउंडिंग द पीसीटी सेल्स। द पंपिंग ऑफ द सोडियम आयंस आउट ऑफ द सेल्स
lowers the concentration of sodium ions in the cell. अब ये पीसीटी सेल्स हैं, ये कैपिलरी जा रही है। अब कैपिलरी के अंदर आपके पास सोडियम आयन ज्यादा हो गए हैं, पीसीटी सेल्स के अंदर आपके पास सोडियम आयन कम हो गए हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो दैट सोडियम आयंस इन द फिल्ट्रेट diffuse down the concentration gradient through the luminal membranes. However, sodium ions do not diffuse freely to the membrane. अब हुआ क्या था, जब हमने सोडियम आयंस पंप किए आउट ऑफ द सेल, उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन लो कर दी ऑफ सोडियम आयंस इनसाइड द सेल्स। सो द सोडियम आयंस इन द फिल्ट्रेट डिफ्यूज डाउन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द लुमिनल मेम्ब्रेन्स, और अब वो अंदर चले गए उस लुमिना के अंदर जो खाली जगह है। However, sodium ions do not diffuse freely through the membrane. They can only enter through a special co-transporter protein, such as glucose हो सकता है, या कोई अमीनो एसिड हो सकता है स्पेसिफिक टाइप का, जैसे हम सुक्रोज की ट्रांसलोकेशन करते थे। Passive movement is what? From a region of higher concentration to a region of lower concentration of sodium ions into the cell down the concentration gradient provides the energy to move the glucose molecules in this way into the cell as well against a concentration gradient. अब जो ग्लूकोज है, अब हमने क्या किया कि सोडियम आयन पीसीटी से बाहर फेंके कहाँ पे, ब्लड के अंदर। अब हमने जब ब्लड के अंदर वहां पे फेंक दिए तो क्या हुआ, नाउ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, अब जब सोडियम आयंस ने वापस मूव करना है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट मूवमेंट हैज प्रोवाइडेड द एनर्जी to move the glucose molecules in this way into the cells against a concentration gradient. This movement of glucose and amino acid is an example of an indirect secondary active transport. इनडायरेक्ट क्योंकि एनर्जी इनकी खुद की नहीं थी, सोडियम की यूज की थी, सोडियम की मूवमेंट की वजह से। और सेकेंडरी क्यों, क्योंकि किसी के साथ आ रहे हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों, क्योंकि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, हाई टू लो जा रहे हैं। Since the energy is used in the pumping of sodium ions and not in moving these solutes. Once inside the cell, glucose diffuses down its concentration gradient through a transporter protein in the basal membrane into the blood. ऑलराइट, सो अब जो सारा ग्लूकोज था हमारे फिल्ट्रेट के अंदर, फिल्ट्रेट कहाँ पे था, पीसीटी के अंदर, पीसीटी सेल्स के अंदर, पीसीटी ट्यूब के अंदर था। वो जो सारा ग्लूकोज था हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, वो ट्रांसपोर्ट हो गया है नाउ फ्रॉम द पीसीटी into the blood capillaries. Now, normally no glucose is left in the filtrate, so no glucose is present in the urine as well. Similarly, amino acids, vitamins, and many sodium ions and chloride ions are reabsorbed in the proximal convoluted tubule as well. अब जब ये सोल्यूट्स रिमूव किए हमने पीसीटी के अंदर से, उसने पीसीटी का वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और कैपिलरीज के अंदर जो सारा हमारा ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज और वो सब कुछ लगे, तो कैपिलरीज और ब्लड की जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो गया है। सो नाउ देयर इज अ वेरी स्टीप वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द फिल्टर्ड एंड द ब्लड, एंड द वाटर मूव्स डाउन द ग्रेडियंट थ्रू द सेल्स एंड इनटू द ब्लड बाय ऑस्मोसिस, एंड द वाटर एंड द रीअब्सॉर्ब्ड सॉल्यूट्स आर कैरिड अवे। अब रीअब्सॉर्ब्ड सॉल्यूट्स ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह वो भी वापस बॉडी में जा रहे हैं, और पानी वापस अब बॉडी में चला जाएगा। Surprisingly, quite a lot of urea is reabsorbed too. Cell surface membranes are slightly permeable to urea, and its concentration in the filtrate is considerably higher than in the capillaries. So it diffuses passively through the cells of the proximal convoluted tubule and into the blood. About half of the urea in the filtrate is reabsorbed in this way. Up the reabsorption of so much water and solutes from the filtrate in the proximal convoluted tubule greatly reduces the volume of the filtrate remaining. अभी उसने आगे ट्रेवल करना था, अभी लूप ऑफ हेनरी में भी जाना है, फिर डिस्टिलेटेड कॉन्वर्टेड ट्यूब में जाना है, फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाना है, उसका हमने वॉल्यूम इतना कम कर दिया है। इन एन एडल्ट ह्यूमन, around 125 centimeter cube of filtrate enters the proximal tubules every minute, but only about 64% of this passes into the loop of Henle. So here you can see अगेन एक समरी देखते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप जो बेसल मेम्ब्रेन के अंदर थे, बेसल मेम्ब्रेन क्या है, ये आपके पास पूरा सेल है, ये पूरी क्या चीज है, दिस इज द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये सेल है पूरा, ठीक है। अब इस प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड सेल की जो मेम्ब्रेन है वो आपके पास कौन सी है, दिस इज द मेम्ब्रेन जो ब्लू के अंदर मार्क की है, करेक्ट, Yes. ठीक है। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, सोडियम पोटेशियम पंप्स इन द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। They use the ATP made by the mitochondria, and these pumps decrease the concentration of sodium ions in the साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस कम कर देगा, क्योंकि वो सारे कहाँ पंप कर देगा, इन दी ब्लड कैपिलरीज। द बेसल मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू गिव अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर मैनी ऑफ these carrier proteins. Very close nearby, the blood plasma rapidly removes absorbed Na and Cl minus glucose and amino acids. This also helps further uptake from the lumen of the
ट्यूब्यूल। अब साथ ही साथ अगर आप देखो तो बहुत सब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब का ल्यूमेन है, ठीक है। नाउ इफ आई टेल यू किस तरह की डायग्राम है, इसको एक दफा समझते हैं, समझ आएगी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कैपिलरीज, ठीक है, जिसको हम ब्लड भी कह सकते हैं। साथ ही फिर आपके पास अब एक ट्यूब जा रही है, दिस इज योर ट्यूब। कौन सी ट्यूब है ये, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इस ट्यूब की जो वॉल है, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियम सेल्स वी कॉल एज पीसीटी। ये पीसीटी जो सेल्स हैं, ठीक है। अब इनको लेबल करें, दिस इज द ल्यूमेन, दीज आर योर पीसीटी सेल्स, ठीक है। इनके बीच में यू कैन सी ये जो आपके पास डार्क रीजन है, ये कौन से हैं चीजें, दीज आर द बेसल मेम्ब्रेन। और फिर आपके पास कैपिलरीज आती हैं, समझ आइए। हम्म। गुड। अब वेरी क्लोज नियर बाय द ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो रिमूव्स एब्जॉर्ब। अब जो इधर आपके पास कुछ ल्यूमेन के अंदर सोडियम, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड पड़ा हुआ था यहाँ पे ट्यूब के अंदर, ठीक है, वो भी रैपिडली रिमूव हो रही। पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेल से सोडियम आउट किया, ठीक है, बाहर ज्यादा कर दी। अब ल्यूमेन से भी बाहर होती जा रही हैं चीजें, जिसने फर्दर अपटेक बढ़ा दिया ट्यूब्यूल का। एंड अगेन इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द माइक्रोबिलाई, जिसने इतना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, हेल्पिंग द अपटेक ऑफ सोल्यूट्स। Sodium ions move passively into the cell down its concentration gradient, and it moves in using protein co-transporter molecules in the membrane, which bring in the glucose and amino acids at the same time. Is it clear? तो Somewhat, yeah. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मोस्टली ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो चुका है, ठीक है, एक दफा पढ़ोगे यूल गेट इट। अब हमारे पास दो और रीजन्स रह जाएंगे, ठीक है। रीअब्सॉर्प्शन इन द लूप ऑफ हेनले क्या होता है, लूप ऑफ हेनले एक साइड होती है उसकी नोन एज डिसेंडिंग, और दूसरी साइड को कहते हैं असेंडिंग। और याद रखें कि ये लूप ऑफ हेनले इतना ज्यादा डिप होता है कि ये आधा आपके पास कुछ हिस्सा है इसका मेड्यूला के अंदर भी होगा किडनी की, कुछ हिस्सा तो ऑब्वियसली सारे बाकी जो आपको बॉबमैन कैप्सूल, पीसीटी और वो सारे थे, वो तो सारे कॉर्टेक्स में आते थे। लेकिन लूप ऑफ हेनले और प्लस नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये दो हिस्से आपके पास मेड्यूला के अंदर तक जाते हैं, ये देखो, Yeah. इधर है डायग्राम, ये देखिए, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर द लूप ऑफ हेनले इज इनसाइड द मेड्यूला, मेड्यूला तक जा रहा है। कलेक्टिंग डक्ट आपको इस मेड्यूला तक जा रही है, बाकी सारे तो आपके पास कॉर्टेक्स के अंदर ही है, पीसीटी और वो सारा। अब इसका भी एक रोल होगा, दैट हाउ एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर देयर एज वेल, ठीक है। कितना निशान डाले हैं, यू कैन सी फ्रॉम द अबव फिगर दैट द लूप ऑफ हेनले आर पैरेलल टू द कलेक्टिंग डक्ट्स। ये दोनों आपस में पैरेलल है, कलेक्टिंग डक्ट भी और लूप ऑफ हेनले भी। The function of these loop is to create a very high concentration of sodium and chloride ions in the tissue fluid inside the medulla. इन loop of Henle ने क्या करना है कि जो इनकी सराउंडिंग्स है मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला में इन्होंने क्या करना है, दे हैव टू प्रोड्यूस अ वेरी हाई concentration of sodium and chloride ions in the tissue fluid in the medulla. This is partly achieved by the active transport by the cells of the thick region of the ascending limb of the each loop, and the concentration of solute in medulla of human kidneys can be as much as 4 times the concentration of blood plasma. अब होगा क्या कि इनके अंदर जो लूप ऑफ हेनले के अंदर जो बचे कुछ सोडियम और क्लोराइड आयंस हैं और वो सारे हैं, उनको एक्टिवली पंप किया जाएगा बाहर, क्योंकि अंदर तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन पहले ही कम हो गई, बहुत से तो पीसीटी के अंदर निकल गए थे। लेकिन हम अभी भी जबरदस्ती बाहर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन की मेड्यूला के अंदर पंप करेंगे, ताकि मेड्यूला की टिश्यू फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। एज यू विल सी, क्रिएटिंग अ टिश्यू फ्लूइड इन द मेड्यूला enables a lot of water to be reabsorbed, क्योंकि लूप ऑफ हेनले अब क्या करेगा, यहाँ पे दोबारा बना लेता हूँ एक डायग्राम। दिस इज योर मेड्यूला, ये बॉबमैन कैप्सूल, पीसीटी सेल्स, ठीक है, ये आपके पास लूप ऑफ हेनले, और ये आपके पास कलेक्टिंग डक्ट भी आ रही है, और ये आपका डिस्टेंट कॉन्वर्टेड ट्यूब। नाउ लुक एट वेरी केयरफुली, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले क्या करेगा, क्या पंप करना शुरू हो जाएगा, सोडियम और क्लोराइड आयंस, गॉट इट। कहाँ से कहाँ पंप कर रहे हैं, Hmm. कैन यू टेल मी। Shit. No, I don't know. देखिए मैंने क्या एरो डाला है, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस किधर से कहाँ पंप हुए हैं। Sir, असल में the moment that you're drawing on the board, like on the textbook, I cannot see it properly because बहुत देर से drawing दिख रही है मुझे. So इसलिए I'm looking at my own textbook. कैन यू लुक एट द पिक्चर राइट नाउ ऑन द स्क्रीन, नजर आ रहा है, Yeah. ठीक है, मैं दोबारा बना देता हूँ।
लुक ओवर है, ठीक है। दिस इज योर बॉबमैन्स कैप्सूल, ये पीसीटी सेल्स हैं। द लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। ये समझ आ गया डायग्राम? जी जी जी। ठीक है। याद रखें जो कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले हैं वो आपके पास किडनी के देखो दो हिस्से होते हैं ना, एक कॉर्टेक्स होता है, Yeah, I understood that. I got that. फिर एक मेड्यूला है। लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में Mm, क्या करेगा, अपने अंदर से लूप ऑफ हेनले से क्या चीजें निकाल के मेड्यूला में भेजेगा, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। गॉट इट? right. गुड। Yeah. इससे क्या हो रहा है, बड़ा आसान सा मजे का तरीका है। Na और Cl उसने बाहर पंप कर दी, किधर, मेड्यूला के अंदर। अब मेड्यूला की वाटर पोटेंशियल हाई हो गई है या लो हो गई है? Hi. दोबारा सोचें, No. कैसे लो हुई है? Because of the hydrostatic pressure, wasn't it? नहीं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मैंने कहीं नहीं बोला। सोडियम और Never mind. क्लोराइड आयंस मेड्यूला के अंदर आ गए हैं। सोल्यूट Yeah. ज्यादा हो गया पानी में, तो पानी कम हो गया जी ना मेड्यूला में, राइट? जी we're जी not जी। naming I'm not naming I haven't said anything like hydrostatic pressure till now, ठीक है? अभी वाटर पोटेंशियल की बात हो रही। सोडियम और क्लोराइड आयंस को लूप ऑफ हेनले ने बाहर पंप किया इनटू मेड्यूला। मेड्यूला की वाटर पोटेंशियल क्या हो गई, लो, क्योंकि उसमें बहुत सारे आयंस Fine. आ गए। और लूप ऑफ हेनले में वाटर पोटेंशियल को क्या हो गया, हाई हो गई, क्योंकि उसमें अंदर पानी ही पानी है, क्योंकि उसके पास जो बचे कुछ आयंस थे वो उसने मेड्यूला भेज दिए। तो अब पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, कैन यू टेल मी? So it's going to go from like a lower water potential to an area of higher water potential. ऑस्मोसिस कहते Yes. हैं, लोअर टू हायर वाटर पोटेंशियल। Yes, osmosis. दोबारा सोचें, व्हाट इज ऑस्मोसिस, डिफाइन मी ऑस्मोसिस। It's the movement of water from an area of lower water potential to an गलत, area of higher water potential. रॉन्ग। इट्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। Oh, yeah, sorry. I was Oh my God. I'm so sorry. That अब was बताएं that फिर was a कहाँ mistake on my मूवमेंट part. होगी? लूप ऑफ हेनले टू मेड्यूला या मेड्यूला टू लूप ऑफ हेनले? It's going मेड्यूला। to go from हम्म। Never mind. No, I'm gonna say it wrong. I'm just not gonna बता say it. नहीं नहीं नहीं, बताओ कुछ, मैं दोबारा समझाऊंगा, मैं बार बार समझाता रहूंगा, कोई मसला नहीं है, बताओ। You're saying from where to where? यस। Okay. Um, दोबारा समझते हैं, it's हमारे पास gonna दो एरियाज हैं, ठीक okay. है? एक है लूप ऑफ हेनले और एक उसके इर्द गिर्द मेड्यूला। गॉट इट? G. लूप ऑफ हेनले ने क्लोराइड और सोडियम आयंस कहाँ पंप कर दिए, मेड्यूला के अंदर। अब मेड्यूला के अंदर इतने आयंस हो गए हैं कि मेड्यूला का वाटर पोटेंशियल कम हो गया। लूप ऑफ हेनले में अब वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगी, क्योंकि उसने सारे आयंस बाहर भेज दिए थे। तो मूवमेंट अब लूप ऑफ हेनले और मेड्यूला के दरमियान किस डायरेक्शन में होगी, लूप ऑफ हेनले टू मेड्यूला या फ्रॉम मेड्यूला टू लूप ऑफ हेनले, वाटर की मूवमेंट? From the medulla to the loop of Henle. दोबारा सोचो, It's the other way around, isn't it? वाई, क्यों होगी अदर वे अराउंड? Because okay. So because of the amount of water potential being higher in the loop of Henle, so क्यों obviously है it's gonna हाई? move to the medulla. Nahin? हायर क्यों है लूप ऑफ हेनले वाटर पोटेंशियल, कैसे हुआ था? Because of the okay. सही बता रहे हो? Some मुझे नहीं पता. Stop bullying me. व्हाइट बोर्ड खोल, दिस विल बी फन। अच्छा जी, बड़ा इजी सा चीज है वैसे, लेकिन अब दोबारा व्हाइट बोर्ड पे समझते, क्लोज इट बुक, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, ओके? किधर है, किधर है, किधर Okay, fine. है? दिस इज द वेरी टफ चैप्टर ऑफ A2, हाईली अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, देखो ऑफ मेंस कैप्सूल, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? जी ठीक है, ठीक है। दिस इज मेड्यूला, या ठीक है। दिस इज द लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये वाली साइड है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये वाली साइड है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, descending. ठीक है।
Yeah. ओके, नाउ या इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि जो मेड्यूला वाले जो जो सारा वो सारा डिसेंडिंग ही होता है, क्योंकि वो जरा नीचे वाला है, नीचे डिसेंड का है, ठीक है। नाउ व्हाट्स गोना हैपन, पीसीटी के अंदर क्या क्या हो गया था, आपके पास जो मेजर चीजें एब्जॉर्ब हुई थी वो ग्लूकोज थी, जो हमने बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब कर लिया था, ठीक है, बहुत ज्यादा रीएब्जॉर्ब कर लिया था, विच वॉज अ मेजर पार्ट, ग्लूकोज वॉज द मेजर पार्ट ऑफ दैट। अब हमने कुछ पानी भी वापस लेना है, मैं नहीं चाहता कि मेरा पानी एक्सक्रीट हो बॉडी से, तो मेरा जो लूप ऑफ हेनले है वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू पंप सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस इनटू द मेड्यूला। इससे मेड्यूला की वाटर पोटेंशियल को क्या हुआ है, क्या वो हाई हो गई है या लो हो गई है? Low. गुड। और लूप ऑफ हेनले की वाटर पोटेंशियल को क्या हो गया? High. क्यों हाई हुई है? क्योंकि उसमें अब आयंस नहीं है, बाहर भेज दिए, सिर्फ Yeah. पानी है। बाहर आयंस इतने ज्यादा हो गए, पानी कम हो Mhm. गया। तो जो ऑस्मोसिस है Okay. वो फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल ही हो गया ना, फ्रॉम द लूप G. ऑफ हेनले टू द मेड्यूला। Medulla. मेड्यूला से फिर वो ब्लड कैपिलरीज में और वापस मेरी बॉडी को मेरा पानी मिल जाता है, खत्म, इतनी सी बात थी। Oh. Ah. तो हमारा पानी रीएब्सॉर्ब हो Yeah. गया, और पानी रीएब्सॉर्ब होने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, वी हैड टू पंप सम आयंस आउटसाइड फ्रॉम द लूप ऑफ हेनले इनटू द मेड्यूला, ताकि बाहर कम वाटर पोटेंशियल हो और साथ मेरा पानी फिर ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाए। क्लियर? Yes. Good. So this allowed a lot of water to be reabsorbed from the fluid in the collecting duct as well, ठीक है। अब collecting duct के अंदर भी यही काम होता है, क्यों? क्योंकि वो भी डिसेंड कर रहा है इनटू द मेड्यूला, और लूप ऑफ हेनले का भी जो डिसेंडिंग पार्ट था वो भी वहां पे भी वही काम हो रहा था, ठीक है। फर्क क्या आएगा आपके पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, वो क्या चीज अलग रिएक्शन वहां क्या रिएब्सॉर्ब होगा उसको भी हम अलग में देखेंगे। अभी आपने देख लिया कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट में दोनों में एक ही काम हो रहा है, ठीक है। दोनों में से हम क्या वापस रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं अपनी बॉडी में? पानी। गॉट इट? Water. पीसीटी के अंदर मेन Yes. क्या रीअब्सॉर्ब हुई थी? ग्लूकोज, ठीक है। ये हमने अपनी बॉडी को वापस हमने पा लिया, हमने वापस नहीं भेजना इनको बाहर, मैं नहीं चाह रहा कि एक्सक्रीट हो। नाउ एज अ रिजल्ट, इसलिए हम कहते हैं किडनीज ने वाटर रिटेन कर लिया है हमारी बॉडी से, रादर देन एक्सक्रीटिंग इट इन द यूरिन, सो हेल्पिंग टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। आफ्टर लिविंग द लूप ऑफ फेनले द फिल्ट्रेट कंटिन्यूज थ्रू द डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब। अब कहाँ गई है? यहाँ पे। अब आएगी कहानी किसकी? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब की, इनटू द कलेक्टिंग डक्ट विच रन्स इन द मेड्यूला अगेन। अब जब वो यहाँ पे, अभी हमारे पास पीसीटी हो गया, पीसीटी से हम लूप ऑफ हेनले में गए, लूप ऑफ हेनले से भी हुआ है, अब डिस्टल कॉन्वुलेटेड में किया है, और वहां से दोबारा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट दोबारा मेड्यूला का एक हिस्सा है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो सारा है नेफ्रॉन का, वो मेड्यूला के अंदर भी थोड़ा सा आता है। It passes again through the regions where the solute concentration of the tissue fluid is very high and the water potential is very low. Therefore, water can move out of the collecting duct by osmosis until the water potential of the urine is the same as the water potential of the tissue fluid. तो जब ये वाला हिस्सा कलेक्टिंग डक्ट का मेड्यूला में दोबारा जाता है, फिर से वाटर आपके पास कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आ जाता है, नीचे आपके पास यूरिथ्रा तक जाता ही नहीं है, वापस हम पहले ही बॉडी में कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द सेम फंक्शन। क्लियर? Yeah. नाउ द डिग्री टू विच दिस हैपेंस, वो एक हार्मोन की वजह से होता है विच इज नोन एज एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। और ये एंटी डायरेटिक हार्मोन करता क्या है, ये कुछ चैनल्स बना देता है हमारी हेल्प के लिए कलेक्टिंग डक्ट्स में आके। दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट में आके क्या करेगा, कुछ चैनल्स बना देगा नोन एज एक्वापोरिन्स, Mm. Poems. एक्वापोरिन्स। ये आके एक्वापोरिन्स बना ताकि वाटर जल्दी जल्दी वापस रीअब्सॉर्ब हो जाए बॉडी के अंदर। The ability of some small animals, such as rodents, to produce very concentrated urine is related to the relative thickness of the medulla in their kidneys. The maximum concentration of urine that humans produce is 4 times that of the blood plasma. फिर और हर हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिपेंड होता है ऑन द साइज ऑफ द मेड्यूला, थिकनेस ऑफ मेड्यूला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पंप्स कितने हैं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने हैं, कितनी एनर्जी किसको मिल रही है, किस ऑर्गेनिज्म को कम मिल रही है, तो वो डिपेंड करता है कौन कितना पानी रीअब्सॉर्ब कर पाता है। Now, how does the reabsorption in the distal convoluted tubule and collecting duct takes place? The first part of the distal convoluted tubule functions in the same way as the ascending limb of the loop of Henle.
The second part of the distal tubule functions in the same way as the collecting duct. And in the distal convoluted tubule and the collecting duct, sodium ions are actively pumped from the fluid into the tubule into the tissue fluid. अब डीसीटी में क्या होगा? ठीक है, लूप ऑफ हेनले से हुआ है। अब डीसीटी के अंदर क्या होगा? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये वाला। मेड्यूला को अब छोड़ दे, मेड्यूला का अभी हम नहीं पढ़े, अब हम ऊपर ऊपर वापस आते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ना असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, इसके ऊपर हमने फोकस करना। इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब एंड द कलेक्टिंग डक्ट, sodium ions are actively pumped from the fluid into the tubule of the tissue fluid. Again क्या हो रहा है आपके पास? From the fluid, बाहर की तरफ जो आपका इर्द गिर्द टिश्यू फ्लूइड फॉर्म हुआ है, फ्रॉम विच दे पास इनटू द ब्लड, और टिश्यू फ्लूइड से वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं। बोथ पोटेशियम आयंस आर एक्टिवली pumped into the tubule, and the rate at which these two ions are moved in and out of the fluid in nephron can be varied as well, depending on कितना उन दोनों के फर्क में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स है। तो यहाँ पे मोस्टली आपके पास यू कैन से सोडियम आयंस बहुत अच्छे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन द फैक्ट ऑफ एडीएच जो होता है, एडीएच का एक बहुत बार बार एक रिपीटेड सवाल आता है, इफ बॉडी इज डिहाइड्रेटिंग, क्या आपके पास एडीएच प्रोड्यूस होगा? Yeah, it will. अगर बॉडी डिहाइड्रेट करिए, गुड। और अगर बॉडी बहुत एक्सेस पानी है तो एडीएच प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब पानी जान दे। ठीक है, so the effect of ADH is to reduce the loss of water in the urine by making the kidneys reabsorb as much as water as possible. The word diuresis means the production of dilute urine. Diuresis का क्या मतलब होता है? dilute urine, इतना यूरिन प्रोड्यूस होता है, वो डाइल्यूट इतना होता है क्योंकि उसमें बहुत पानी होता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन ये चीज रोकता है कि यूरिन डाइल्यूट ना हो, यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड ही रहने दें और पानी सारा बॉडी में ही रहे, ये नहीं कि वो डायरेसिस के थ्रू पानी भी आपका सारा निकल जाए। इज इट क्लियर? Yeah. गुड।